Good morning, student. Standard 11, subject account, chapter number 1, accounting and its terminology. Introductions. Human being has separated and special existence in the universe. Human being is an intellectual animal. Human being has different style in lifestyle. It relevant with social, religion, economic need to fulfill their needs. He has take support to others people. Every individual has own distinct existence, skill and limitation. Every individual exchange his skill with other individual in the society. Every individual give benefit of personal of their personal skill to other and take benefit to other skill due to this own limitation. In this in this fashion, an individual meet his own need. सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है कि ह्यूमन जो है इन ह्यूमन बीन उनको हम यूनिवर्स से सेपरेट नहीं कर सकते. ह्यूमन बीन हमारे इंटेलेक्चुअल्स एनिमल्स होते हैं. ह्यूमन बीन के डिफरेंट उनकी डिफरेंट लाइफस्टाइल होती है उन जिसको हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि सोशल है, रिलीजन है, इकोनॉमिक नीड है उनकी. और इस नीड को फुलफ़िल करने के लिए उन लोग दूसरे इंसान से सपोर्ट या दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं. हर इंसान की अलग अलग उनकी खुद की फिज़िकल स्किल होती है, उनके खुद के कुछ लिमिटेशंस होते हैं और इसलिए वो सब एक दूसरे से अपनी स्किल एक दूसरे के साथ मिल के जो उनमें कमी है वो सब आपस में एक्सचेंज करते हैं. नाउ बार्टर सिस्टम. Barter system was prevailing in economic due to the absence of money as the medium of exchange. In this system, product was exchanged against product or product was exchanged against service. Example, a farmer has gain and he is need to cloth and who has cloth he is in need of grain. In this case, both the parties used to fulfill their need by check of product. In this barter system, product or service what used to exchange to purchase another product or service. Barter system had practically limitation. Due to the limitation of barter system, a need was emerged for such medium of exchange which would be acceptable to all. हमारे टाइम फर्स्ट पहले बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम का मतलब था कि जहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम या फिर सामान प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट के बदले सर्विस एक्सचेंज करते थे. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक फार्मर है जिसके पास ग्रेन है एंड उसको क्लोथ की ज़रूरत है, तो सामने ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको ग्रेन चाहिए एंड जिसके पास क्लोथ हो. तो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को अपने नीड्स फुलफ़िल करना है, इसलिए दोनों एक्सचेंज करेंगे. लेकिन बार्टर सिस्टम में एक लिमिटेशन थी कि वहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज में समथिंग जो दोनों एक्सेप्टेबल्स हो वो वहाँ पे नहीं था, वो लिमिटेशन था. इन द प्रेजेंट टाइम मनी इज़ यूज एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इन प्रेजेंट टाइम कॉइन, करेंसी, नोट्स एंड now even plastic currency is used in the form of money. For such system where the money is used as the medium of exchange, it is known as the monetary economy. Under this system, by selling product, money is procured and from acquire money, product is purchased. Thus it can be said that product purchase money or money purchase product. अभी प्रेजेंट हमारा क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हम क्या यूज़ करते हैं, मनी कॉइन हो सकता है, करेंसी हो सकता है, इवन अब तो प्लास्टिक नोट भी ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है. अगर हमने कोई वो सिस्टम या जहाँ पे हमने एक्सचेंज किया है और हमने बीच में मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब हमने उसके बीच में हमने मनी बीच में रख के हमने एक्सचेंज किया, मतलब हमने कुछ प्रोडक्ट परचेज़ किया और रिटर्न में सामने वाले को पैसे दिए हैं, या हमने कोई सर्विस की और रिटर्न में हमें सामने से पैसे मिले, मीन्स यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी है. तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, मॉनिटरी इकोनॉमिक, जहाँ पे मनी का यूज़ हुआ है. सो इन प्रेजेंट टाइम human being use money to fulfill his own need. Generally, this medium of money is acceptable to all party. Due to accessibility, quality of money, transactions take place. When the transactions are made through money, they are called economic transaction.
In absence of money, transaction used to take place. Those transactions were on barter system. Transaction made with the help of money as the medium are known as the monetary transaction. अब हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन्स बीन आज के टाइम पे हम क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करना हो या कुछ भी हमें ज़रूरत है और उसको फुलफ़िल करना है तो हमें मनी हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या करते हैं मनी यूज़ करते हैं। अगर हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मनी यूज़ किया है तो उस ट्रांजेक्शन्स को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। और पहले पहले के टाइम पे जब मनी की एब्सेंस थी तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते थे बार्टर सिस्टम, मतलब समथिंग हमने प्रोडक्ट एक्सचेंज किया और बदले में हमने प्रोडक्ट की या सर्विस एक्सचेंज की है। Transactions, whether are made through barter system or monetary system, are required to record and prepare account. It is maintained in the history that account were maintained in ancient time also. अब ये कहा जाता है कि ट्रांजेक्शन्स जो हमने बार्टर सिस्टम या फिर मॉनिटरी सिस्टम कोई भी ट्रांजेक्शन हमने यूज़ किया है हमने तो हमें उसके लिए एक अलग से अकाउंट मतलब हम उसको लिखते हैं पूरा कि हमने क्या किया, हमने कितना परचेज किया एक्सेट्रा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर पहले भी हिस्ट्री में भी हमारे एशियन टाइम में भी हमारा जो ट्रांजेक्शन्स होता था वो रिकॉर्ड्स होता था, उस टाइम पे भी हम ये रिकॉर्ड्स करते थे। Social and economic need of the society are changing with the times and requirement like legals, medicals, engineering, science subject, accounting subject has also merged to exist social and economic activities of the society. From ancient time, accounting system prevails in one or another way. Indian historians have declared economic of the Chanakya and explained the existence and significance of money, accounting. Western historians has given credit for all the same to the mathematicians named Mr. Luca Pacioli of Italy. Where are the several opinion about origin of accounting, but for it is use of significance, common practicals prevail across the world. Due to the industrial revolutions and experience of money, business, trade activity, the use and the significance of accounting has increased day by day. Before acquiring limitations of accounting, let us require the primary knowledge of accounting. अब ये कह सकते हैं कि जैसे कि पहले के टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट थे लाइक फिज़िक्स केमिस्ट्री, वैसे ही नाउ अडेज हमारा अकाउंटिंग भी सब्जेक्ट है। टेक्निकली टाइम के साथ साथ हिज नॉलेज एक्सपीरियंस सब चेंज होता है, मेडिकल सर्विस इंजीनियरिंग सब चेंज हुआ है, वैसे ही अकाउंटिंग में भी चेंजेस आए हैं। लेकिन हमारी हिस्ट्री के टाइम पे भी एशियन टाइम में भी ये सारी अकाउंटिंग होता था एंड रिकॉर्ड्स भी सब करते थे। नाउ अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को समझने से पहले हम इससे पहले हम ये समझ लें कि अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन क्या होता है, अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज कि अकाउंटिंग होता क्या है समथिंग वो। फर्स्ट, accounting in normal term are record or receipt and payment as well as the income and expenditure. When the payment is deducted from receipt or expenditure from income, different is called benefit or profit. When the receipt is deducted from payment or income from expenditure, different is called loss or defeat. For example, a trader had purchased goods of rupees 10,000. Transportation expense is paid of rupees 2,000. The entire goods was sold rupees 15,000. Here the receipt or income is 15,000 against the payment or expense 12,000. Then 10,000 plus 2,000. There's a difference is 3,000. It is called profit. अब अकाउंटिंग में हमारा नॉर्मली हम रिकॉर्ड्स क्या करते हैं, हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट, हमने क्या रिसिप्ट किया और हमने क्या पेमेंट किया वो, जैसे कि हमें क्या इनकम हुआ और हमारा एक्सपेंडिचर मतलब हमारा क्या खर्चा हुआ। अगर हमने पेमेंट किया है जो भी वो हमारे खर्चे हमारा जो भी एक्सपेंडिचर है वो हमारा इनकम से ज़्यादा है, मतलब हमने खर्चा ज़्यादा किया और हमारा इनकम कम हुआ है तो हम उसे लॉस बोलते हैं। और सेम अगर हमें इनकम ज़्यादा मिला है और हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर कम हुआ है तो हम उसे बोलते हैं प्रॉफिट। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि एक ट्रेडर से जिसने 10,000 का सामान परचेस किया है और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब भाड़ा उसका कितना लगा है 2,000, तो
और उसने वही सामान को कितने में बेचा, 15,000 में। मीन्स हमारा कॉस्ट हमने बेचा 15 में और हमारा खर्चा कितना हुआ, 10,000 प्लस 2,000 मतलब 12,000। तो हमें यहाँ पे 3,000 का डिफरेंस आया और ये डिफरेंस हमारा क्या है कि प्रॉफिट है, क्योंकि हमको ज़्यादा इनकम हुई और हमारा एक्सपेंडिचर लेस हुआ है। A method of system which is maintained to keep account is called accounting. Account are also known as the bookkeeping. Accounting term is used as the synonymous of bookkeeping. In this book, accounting term is used in place of bookkeeping. Subject like physics, chemistry, mathematics, accounting subject also is own existence and significance in the society. Accounting has its own special utility. Accounting has its own rule and principle. It is also art and science. Professional bodies are working at national and international level for smooth function of accounting system. अब हम अकाउंटिंग सिस्टम जो मेथड है कि हमने जो रिकॉर्ड्स रखा, मेंटेन किया पूरा रिकॉर्ड्स कि हमने कितना एक्सपेंड किया, कितना हमने एक्सपेंडिचर किया है, कितना हमारा इनकम हुआ वो एक्सेट्रा, उसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। और जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं उस अकाउंटिंग को हम सेकंड नाम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग का सेकंड नाम होता है बुक कीपिंग, से भी अकाउंटिंग को डिनोट किया जाता है। अब ये है कि जैसे कि सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, वैसे ही अकाउंटिंग भी एक सब्जेक्ट है जिसके खुद के रूल्स प्रिंसिपल्स होते हैं, खुद की एक आइडेंटिटी होती है। उसके अंदर हम साइंस एंड आर्ट जैसा स्किल यूज़ करते हैं और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल है जो अकाउंटिंग बॉडीज़ है जो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को वर्क करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे मीनिंग अकाउंटिंग, accounting is the presented in the form of definition by different accounting professional body. On the basis of definition, the concept of accounting can be understood. The following definition is given by American Institute of Certified Public Accounting AICPA. अकाउंटिंग हमारा बहुत सारे अलग अलग अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडीज़ है जिन लोगों ने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग का कंसेप्ट दिया है। और यहाँ पे हमारा सबसे पहले दिया है AICPA, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है जो है अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in the term of money, transactions and events which are part at least financial characters and interpreting the result thereof. अब यहाँ पे क्या बोला कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसको में हम क्या करते हैं कि हम रिकॉर्ड्स करते हैं कि हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किया, उसको क्लासीफाई करना, उसको समराइज़ करना और इस तरह से क्लासीफाई करना कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया है कम से कम वो हमारे टर्म्स ऑफ मनी, मतलब उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट, जो भी हमने ट्रांजेक्शन या इवेंट किया है उसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, मतलब मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मनी है। फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए उसमें कुछ ना कुछ, और उसके बाद हम उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, मीन्स उसका कंक्लूजन निकालते हैं और लास्ट में हम रिजल्ट डायरेक्ट कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हम उसके बाद हम उसका लास्ट में इंटरप्रिटेट करते हैं। तो ये हमारे एक डेफिनेशन है जो हमें दिया है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। दूसरा है बट keeping development of accounting in mind, the following definition is given by the American Standard Council ने ASC ने हमें अलग एक और डेफिनेशन दिया है अकाउंटिंग को जो डेवलपमेंट होता है उसके हिसाब से उन्होंने दिया है। It is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entity that is intended to be useful in making economic decision. यहाँ पे क्या बोला है कि अकाउंटिंग हमारे एक एक्टिविटीज़ है, सर्विस एक्टिविटीज़ है जिसमें हम सारे क्वांटिटेटिव मतलब जो इंफॉर्मेशन जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके हम उसको फाइनेंशियल मतलब मनी के टर्म में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको हमारा जो भी इकोनॉमिक हमें फ़ैसला लेना है, जो भी हमें इकोनॉमिक डिसीजंस लेना है उसमें हम वो चीज़ को वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम हमारे बिजनेस के लिए या हमारे प्रॉफिट के लिए हम कुछ भी डिसीजंस ले सकते हैं।
फ्रॉम द अबव मेंटेन डेफिनेशन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग कैन बी असाइन। अब ये हमारे डेफिनेशन से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक को दूसरा हम नेचर बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग, या फिर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सारा हमारा सेम होता है। कैरेक्टरिस्टिक का ही मतलब नेचर एंड फीचर्स भी होता है। सबसे पहला है फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांजेक्शन्स और इवेंट विच आर रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग मस्ट बी मेजरेबल इन मॉनिटरी वैल्यू। सबसे पहला है कि हमारा जो भी अकाउंटिंग का ट्रांजेक्शन्स या इवेंट होगा वो हम रिकॉर्ड जो भी कर रहे हो वो मनी के टर्म्स में हम मतलब उसको मॉनिटरी में हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स दिया है कि 10,000 kg of chemical is purchased. The value of this purchase has to be determined in the terms of money. हमने 10,000 केमिकल्स परचेस किया है, तो जो भी हमने 10,000 का परचेस किया उसको हम मनी में कन्वर्ट मतलब मनी में हम उसको लिख सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। द केमिकल इज परचेज फॉर ₹20,000 विच मीन्स द 10,000 का केमिकल्स ₹20,000 इन एक्सचेंज ऑफ केमिकल 20,000 आर पेएबल्स। जो हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमने 10,000 केमिकल परचेज किया और उसका पेमेंट किया, उसका परचेज हमने कितने में किया 20,000 रुपीज़ में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने परचेज किया है 20,000 का 10,000 केमिकल्स, जिसको हमने मनी में कन्वर्ट करके हमने रिकॉर्ड्स किया। तो हमारा फर्स्ट है कि फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। सेकेंड, मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स किया उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब बीच में जो हमने एक्सचेंज किया है या फिर प्रोडक्ट हमने परचेज किया है या फिर हमने सर्विस किया, तो बीच में हमारा ट्रांजेक्शन में मनी वर्ड्स आया है, मतलब हमने मनी यूज़ किया है एक्सचेंज में। जैसे कि यहाँ पे दिया है सेलर हैज़ 10,000 किलोग्राम केमिकल, सेलर ने 10,000 केमिकल्स परचेज किया है, प्रोडक्ट है, और सेल द केमिकल फॉर ₹20,000 और वो सेल कितने में हुआ 20 में। परचेज ऑफ एनी कमोडिटी और द सर्विस बाय ₹20,000 मतलब हमने प्रोडक्ट परचेज किया, हमें प्रोडक्ट मिला और हमने बदले में पैसे दिया, मतलब बीच में हमारा क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मनी आया है। थर्ड है क्लासिफिकेशन एंड एनालाइज ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग में सबसे पहले बहुत सारे इन अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। दिस ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन कैश और नॉन कैश for known as the credit transactions. The transactions are performed for any income, expense, asset or liability based activity. These transactions are classified by analyze the different of their nature with the derived from the debit credit rules of accounting. Due to the characteristic of classification and accounting, transactions prescribed times can be together at the place one. Example, what was opening balance of the asset? How many assets were purchased? How many assets were sold? What is the closing balance of asset? Answer of this question are obtained because of the classify and analyze. थर्ड हमारा क्या है कि हमें अकाउंटिंग जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हो हमें उसको क्लासीफाई करना है। कुछ हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें हम कैश कर लेते हैं और कुछ हमारे नॉन कैश होते हैं, मतलब कुछ हमारे क्रेडिट में होते हैं जिसमें हमारा होता है कि हमने उधार में परचेज़ किया है। तो सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना है कि हमारा ट्रांजेक्शन डेबिट है कि क्रेडिट, हमें इनकम हुआ है कि हमें एक्सपेंस हुआ है, हमारा कितने रुपए का हुआ, कितना उसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या हुआ है, वो सारा हमें क्लासीफाई करना है। फोर्थ, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। In accounting, only accounts are not prepared, but after accounting are prepared as per as the prescribed note, they are also interpreted on the basis of disclosed detail and figure. Example, what blood pressure of the person is measured and it's come 120 to 80, it's indicate that the person is healthy from the viewpoint of from the viewpoint. In accounting, interpretation can also done accounting. Example, trial by incomes, total incomes is ₹20,000 and total expense ₹12,000. The difference is 8,000 is excess of income over expense. This indicates that person has benefit from the transactions. अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंटरप्रिटेट करना, सिर्फ अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना, प्रिपेयर करना वो नहीं होना, हमें लास्ट में इंटरप्रिटेट मीन कंक्लूजन उसमें हमें डिस्क्लोज भी करना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर हम एक इंसान का ब्लड प्रेशर हम मेज़र कर रहे हैं, हमारा जो भी उसका आता है फिर हम इंडिकेट करते हैं कि वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है। वैसे सेम अकाउंटिंग में भी हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं फिर हम उसके बाद इंटरप्रिटेट करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जैसे कि टोटल इनकम यहाँ पे दिया है हमें 20 और हमारा एक्सपेंस हुआ है 12,000।
हमारा टोटल इनकम है 20,000, एक्सपेंस हुआ है 12,000, मीन्स 8,000 का डिफरेंस है, मतलब हमारा इनकम ज़्यादा और हमारा एक्सपेंडिचर कम है, मतलब हमारा यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट, तो वो हमें इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा। देन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड इन अकाउंट इन द मॉनिटरी फॉर्म, हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन अकाउंट में होगा वो हमेशा मॉनिटरी, मतलब हम जिस जो भी हमारा अकाउंट में इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम मॉनिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन, different stakeholder take the decisions based on accounting prepared by accounting, example creditor make decision in land of money to the company, potential shareholder make decision to invest the fund, company itself make decisions for its own development. All these decisions has based on money, they are known as the economic decisions, thus the accounting assists to make the economic decision. फिर historical information, in accounting, all the past in transactions and events are recorded. These past transactions or events become history. Past always disclose history. Account prepare on the basis of history, represent historical information and result. This accounting has relate with the historical information. अब historical information का मतलब होता है कि अकाउंटिंग में हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक हमारे लिए इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुआ था जो हम बाद में इन फ्यूचर में हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारे से हमारे अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। थैंक यू।